Yes, sir. So have you done with this installation of MySQL? Yes, sir. So what the thing you have to work out is MySQL. How we have to Sir, start? create table and insert data into it. Create table, insert data, but before of that, everyone haven't done with. अरे त्या 1 month pattern मध्ये link करायचं मला. Everyone have done with this? Yes, sir. Done na? Everyone. No one have an issue. No, In sir. installation, anyone have an issue? No, sir. No, na? No, sir. So what the story we have to do for the next thing? Now we just going to be work out for query execution. तो आप लोगों ने वर्कआउट किया होगा before of this. When you comes to know about this execution. Now let's start with the query execution. ठीक है? Database. What is in my database? Can you tell me? Yes, guys. What is mean by database? Organized collection of structural information on data. Organized structure on collection information on data. Or data. Okay, right. So simply if we are talking about this one, so what we call database is nothing but what? Database is nothing but the collection of data. Having collection of data, we call it as a database. Okay. So Excel sheet is what? Excel sheet is a database. Excel sheet is a database. What? Your CSV is the database. Okay. Your other things are database. Okay. So what is mean by database? जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं वो डेटाबेस है. तो कैन आई से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज अ डेटाबेस गाइस? Yes, sir. Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज अ डेटाबेस मैं डेटाबेस बोल सकता हूँ. यस. एक्सेल शीट इज इट अ डेटाबेस? Yes, sir. Yes, Okay. sir. But difference is what? There are the two types of databases. One is a SQL database and second one is the no SQL No database. SQL. Okay, एक होता है SQL database और दूसरा होता है no SQL No database. SQL. This Microsoft Word, Office, these are called as what? No SQL database. Okay. And what is in my SQL database, which is going to be operated with the SQL command? What is SQL database? Oracle, MySQL, Oracle, SQL. MySQL, MongoDB. PLSQL. Right? These all are called as what? These all are called as MySQL database. MySQL. So that the thing we just want to work out about this one. तो ये दो databases हमारे पास होते हैं. One is a SQL and second one is a NoSQL. In SQL, we have to just talk about like MySQL, the database you can work out. You can work out with Oracle. You can work out with SQL Server, जो भी एक database है. Okay. So n numbers of things getting to be work out. Okay. So ये हम लोग इसमें वर्कआउट करते हैं into the SQL databases. When we are talking about NoSQL databases, तो MongoDB हो गया. ये क्या है? तो NoSQL database है. Okay. और apart from that, graph databases are also treated as a NoSQL database. पहले जो लॉन्च हुआ था, इस वक्त 5 मिनट, पहले जो लॉन्च हुआ था वो था DBMS. ओके. और उसके पहले जो डेटा स्टोर होता था वो था फाइल सिस्टम. पहले लोग फाइल में डेटा स्टोर करते थे, अब लोग DBMS में डेटा स्टोर करने लगे. सो DBMS स्टैंड्स फॉर गाइस? Database management. Database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस को मैनेज करने वाली सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? DBMS. DBMS. वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन DBMS. तो अगर हम लोग को DBMS में क्या होता था कि वी आर स्टोर्ड डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. ओके. व्हाट हैपन इनटू द फाइल? इन फाइल यू जस्ट डायरेक्टली स्टोर डेटा, बट व्हाट इज द इशू विद दैट डेटा? वो हम लोग प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर नहीं कर पाते. उसे एक्सेस करना इज अगेन अ डिफिकल्ट थिंग. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. ओके. टू एक्सेस दैट डेटा इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू वर्कआउट. तो ये सब प्रॉब्लम्स और ये सब इश्यूज थे फाइल सिस्टम में, और फाइल अगर आपकी डिलीट हो गई तो सब कुछ चला गया. सो डेटा हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. डेटा हैव एन वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. वी हैव टू वर्क आउट विद द डेटा प्रॉपर्ली. वी हैव टू कीप द डेटा प्रॉपर्ली एंड वी नीड टू कीप द डेटा सिक्योरली एज वेल. ओके. तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की थी किसमें? ये सब चीज़ें हम लोगों ने वर्कआउट की थी डेटाबेस में. वी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट? वी जस्ट टॉक अबाउट DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. देन एज वी आर डन विद दिस, इसके बाद जो कंसेप्ट आया, सी DBMS में टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होने लगा. इसके बाद जो कंसेप्ट आया दैट इज RDBMS. RDBMS. ओके.
So to overcome the drawback of DBMS, and what is the drawback of DBMS? Have you know? What is Can't drawback of form DBMS? relation. Yes, कॉलम में आप लोग दो टेबल्स को लिंक नहीं करते थे, ये ड्रॉबैक था DBMS का. इसे ओवरकम किया किसने? तो RDBMS में. RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS stands for Relational Database Management System. These are the story we have to work out. About what? About RDBMS. These are the stories getting to be worked out. About what? RDBMS, and RDBMS stands for Relational Database Management System. Am I clear, guys? Yes, sir. ओके ना. सो पहले DBMS था, फिर RDBMS था. अब RDBMS हमें हेल्प करता है और अभी लोग RDBMS में काम करते हैं. इसके आगे जो है वो NDBMS, इसके आगे का कंसेप्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. NDBMS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. NDBMS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंस there are the multiple data sources और multiple databases. ओके, तो ये कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ and just getting to be work out as a joint. That is called as NDBMS, and people are moving toward this one because a tremendous amount of data is there. Clear? Bhai? Yes, sir. Sai, Kala, Ankit, Yes, sir. clear everyone? Yes, Okay na? Sneha clear, Shrish clear, Sakshi, Sumit. Yes, sir. Okay. Yes. So likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. When we are talking about what? When we are talking about SQL and NoSQL databases. That is the story getting to be worked out. That is the story getting to be executed. Just note it down. What is DBMS, RDBMS. Then I will move to the next concept, how to create a database. Read किया है? Okay. And how we can start the MySQL database. just आपको MySQL पे सर्च करना. You will get in the command line here. So you have to search your MySQL. आप लोग यहाँ पे MySQL सर्च करोगे, कमांड लाइन पे क्लिक करोगे, and it will ask you for the password. What is the password? सर मेरा इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है अभी. Do one thing, Pawan. Send me the NNS ID or just share the screen after just I completed. Okay. Okay. So what the thing we have to do, guys? We have to just pass here the password. और password हम लोग क्या पास करेंगे? रूट दैट यू आर वर्कआउट ऑलरेडी. तो सबसे पहली चीज देखिए, whenever you want to give a backend to your project, what is mean by backend? How this backend will work? Backend यानी क्या होता है? आपके सिस्टम का बैकबोन है. डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट का बैकबोन है, आपके सॉफ्टवेयर का बैकबोन है. जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन हम इस बैकबोन में स्टोर करते हैं, हम लोग इस डेटाबेस में स्टोर करते हैं. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. इसके अंदर हम लोग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, इसके अंदर हम लोग सब डेटा स्टोर करते हैं. तो आपको कोई भी पूछे व्हाट इज द बैकबोन ऑफ योर प्रोजेक्ट, तो आपके प्रोजेक्ट का जो बैकबोन होता है वो डेटाबेस होता है, एंड विच इज टू मच इम्पॉर्टेंट टू वर्कआउट. हमें इसे बहुत प्रॉपरली वर्कआउट करना है, बहुत प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज नथिंग बट द बैकबोन ऑफ अवर प्रोजेक्ट, एंड वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी जस्ट कॉल इट एज एन डेटाबेस. एम आई क्लियर? ओके. तो पहले हमें क्या करना होता है? व्हेनेवर वी आर जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट, हम लोगों को सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना होता है. ओके, हम लोगों को डेटाबेस को सबसे पहले क्रिएट करना होता है. नो वन डेटाबेस इज ऑलवेज रेडी. कोई भी डेटाबेस रेडी नहीं होता है, उसे हम लोगों को क्रिएट करना होता है. सो हाउ वी कैन क्रिएट दैट डेटाबेस? हम लोग डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? सो देखिए, डेटाबेस के अंदर क्या होता है, हाउ द डेटाबेस इज गेटिंग टू वर्कआउट. सो लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दैट. आप अगर कोई भी डेटाबेस लोगे तो उसमें इंफॉर्मेशन जो स्टोर होंगी वो उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर होंगी वो हमेशा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होंगी. ओके, इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन व्हाट? इंफॉर्मेशन गोइंग टू बी स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म. ओके राइट, क्लियर ना? पवन वेट, लेट मी फिनिश. Okay. Wait, I will tell you when you have to share the screen. Okay, got it? See guys, here what the thing we have to do, we have to just talk about database, and database composed of what? Tables. In the tabular form data stored करते हैं. तो database किसका बना हुआ है? बोले एक बार फास्ट. Tables. Database composed of
tables, tables contain rows and rows and columns, columns, and rows and columns contain data, record and record contain record ओके रिकॉर्ड कंटेन डेटा ओके ना। तो हम लोग डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं। डेटाबेस में हमेशा टैबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, टैबुलर के अंदर रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है, एंड दैट द रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट हियर। रिकॉर्ड में डेटा स्टोर होता है, रिकॉर्ड कंटेन द योर डेटाबेसेस। एम आई क्लियर गाइस? क्लियर? ओके। तो जब भी हम लोगों को डेटाबेस के साथ खेलना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब डेटाबेस के अंदर फिर हमें बाद में क्या क्रिएट करना है? टेबल। ओके। फिर टेबल के अंदर हम लोग वर्कआउट करेंगे बाकी ऑपरेशंस को। तो बेसिकली व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस आर गेटिंग टू बी परफॉर्म ऑन डेटाबेस? तो क्रूड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डेटाबेस में। ओके। व्हाट आर द ऑपरेशंस वी हैव टू परफॉर्म ऑन डेटाबेस? वी हैव टू परफॉर्म क्रूड ऑपरेशंस। बोलिए कौन सा ऑपरेशन? crude operations, C stands for create, R stands for retrieve, update, R stands for retrieve, U stands for retrieve, update, and D stands for delete. C stands for create, R stands for read, U stands for update, and D stands for delete. Okay. Create, read, update and delete. Create, read, update and delete. These are the entities we have to work out. Sir, R for read. R for read, read. Okay. जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कोई भी वेडिंग सेरेमनी में जाते हो ना, और कोई भी फंक्शन में जाते हो या फिर कोई रिसेप्शन में जाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टेकिंग अ थाली, राइट? Yes, sir. Okay. So that thali is nothing but what? Data base. Clear ना? That thali is nothing but what? Data base. फिर डेटाबेस के अंदर हम लोग वो थाली में लेते हैं बाउल्स, राइट? वी आर टेकन द बाउल्स ना। ओके। तो बाउल्स मीन्स व्हाट? टेबल। बाउल्स के अंदर हम लोग लेते हैं कंटेंट। वी आर टेकिंग करी, वी आर टेकिंग स्वीट्स, वी आर टेकिंग सम अदर थिंग्स। तो वो हो गया इंसर्ट ऑपरेशन। ओके। विच ऑपरेशन? Insert operation. इंसर्ट ऑपरेशन। और वो सब चीजें वर्कआउट करने के बाद जब हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं, वी कॉल इट एज एन सिलेक्ट और रीड ऑपरेशन। उसे हम लोग सिलेक्ट ऑपरेशन बोलेंगे या रीड ऑपरेशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. So CREAT, create, read, update and delete. It's like to be the, देखिए खाना खाने के बाद we are throw that plate into the dustbin, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay now. So likewise the story we have to work out when we are talking about these all operations. जब आप लोग इस सभी ऑपरेशंस को वर्कआउट करते हैं तो ये टोटली सिमिलर टू दैट ऑफ कोई रिसेप्शन में जाके खाना खाना, वही काम है जो हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. ओके। सो दैट आर द ऑपरेशंस वी हैव टू परफॉर्म। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो हम लोग डेटाबेस को कैसे क्रिएट करोगे? व्हाट इज द थिंग वी हैव टू राइट डाउन फॉर द डेटाबेस? जस्ट राइट डाउन Create database and database name. database name, Database name. Semicolon. then to get the list of databases, what is the query? Show databases semicolon. Everyone please. Sai, what is the query? Show databases. Show databases. Show databases. Then to select the particular database, what is the query? Use database name. Use database name and semicolon. Good. Anki, you are done good with Ankit sir, right? Yes, sir. Good. Yes, sir. जो डेटाबेस हम लोगों ने वर्कआउट किया है उस डेटाबेस को हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। व्हाट इज़ द थिंग वी हैव टू डू? व्हाट इज़ द थिंग? माई डी को मैंने वर्कआउट किया है तो इसे मैं नाम दे दूंगा क्रिएट यूज माई डी बी विद सेमीकोलन। ओके। क्लियर गाइस? No. देन अब मैं आगे सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ यस सर ये जो डेटाबेस इसको मतलब कहाँ पर यूज होता है? जैसे कि मतलब
तो ऑफिस लाइन में किधर यूज होता है सर डेटाबेस? जहाँ लेट मी एक्सप्लेन, सी पवन, गुड क्वेश्चन। देखो हम लोगों ने टी इंटर में फॉर्म बनाया था, याद है तुम्हें? यस सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। अब उसमें जो हाँ। यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा, ओके, तो वो डेटा तो तुम्हें कहीं Yes. ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा ना, यस राइट? तो ये डेटा हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे? पूरा का पूरा ये हम लोग स्टोर कर देंगे डेटाबेस में। अच्छा, सर्वर के अंदर स्टोर है, राइट ना सर? सर्वर बोल सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली या यू कैन सेलेक्ट दैट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग अगर नेट पे रहेंगे, अगर हम लोग को डेटाबेसेस का, जैसे कि गूगल का डेटाबेस देखना है तो कैसे देख सकते हैं? नहीं, गूगल का डेटाबेस नहीं देख सकते। वो खुद की इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करेगा? को किसका भी नहीं देख सकते सर? नो। अच्छा, ओके, सो यस वो खुद का भी नहीं देख सकते। अच्छा सर, मतलब किधर देखने को मिलेगा जैसे डेटाबेस? डेटाबेस अभी तक तो बुक में ही देखा। रियल टाइम किसी का नहीं मिल सकता। नहीं मतलब ऑफिस मतलब कभी किधर, मतलब जैसे कि जो काम करते हैं। जब देखो कैसा है, कोई भी प्रोजेक्ट का डेटाबेस डायरेक्ट एम्प्लॉय के साथ शेयर नहीं होता कोई भी ऑफिस में, ओके? एंड इफ यू वांट Yes, टू yes. रिकॉर्ड फॉर दैट यू मस्ट बी नो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट वन एज वेल। कोई डायरेक्ट Yes, yes. डेटाबेस का एक्सेस नहीं देगा, क्लियर? क्योंकि डेटाबेस अगर शेयर कर दिया तो कॉन्फिडेंशियली डेटा चला गया ना। आज अगर फेसबुक वाला खुद डेटा होके शेयर कर देगा तो व्हाट द थिंग, यस क्या होगा? अदर कंपनी ओवरटेक यस, फेसबुक। राइट? तो वो तो डेटा मुझे मिल जाएगा ना। आज अगर यूआईडी का डेटा मुझे मिल गया, आधार कार्ड के प्रोजेक्ट का, क्या होगा? मेरे पास 120 करोड़ लोगों की कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उनके फैमिली में कितने लोग हैं, राइट? यस सर। So that the thing getting to be work out, MyDB database that getting to be work out here. अब इसके अंदर देखिए, जब हम लोग डेटाबेस को वर्कआउट करते हैं, हाउ वी कैन गेट अ लिस्ट ऑफ टेबल्स? Sure databases. लिस्ट ऑफ टेबल। डेटाबेस के अंदर टेबल होंगे, राइट? तो उसकी लिस्ट मुझे कैसे मिलेगी? Yes guys, show tables, is it? Yes sir. Will it work? Yes or no? Rushikesh? Yes, Yes, sir. Yeah, show tables will work. Okay, show tables यानी इसमें कुछ भी नहीं है, nothing is there. Clear? Nothing is there. Okay, क्योंकि मैंने इसमें टेबल क्रिएट ही नहीं किया है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. यस क्रिएट टेबल नहीं लिखा है सर। हाँ, तो ये अब हम लोगों को होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट अ फर्स्ट टेबल। व्हाट इज द क्वेरी? Create table name, टेबल नेम, हाँ, इन in ब्रैकेट bracket, Varchar. database, name varchar किसका नाम? डेटाबेस column name and varchar, कॉलम नेम। लेट्स आई वांट टू क्रिएट अ टेबल विद कॉलम नेम जिसका then नाम है नेम, size, एंड सेकंड कॉलम then नेम second column name, varchar and then size. 900 सेमीकोलन, राइट? Yes, sir. DSC user data. So we are just getting name and email. Is that clear, guys? Yes, sir. Okay now. Likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. Okay? फिर अब अगर मैं वापस से लिखूँ show tables, so I will get the list. Describe करूँ टेबल को. What is the purpose of describe table? Yes guys. Describe table का पर्पस क्या? You want to check And we will know the attributes. to know the attributes as well as to know about the columns available into the database. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. तो अगर हम लोग बात करें show tables की, so we are just getting the table listed here. DSC user data, okay. Name and email. We are just work out with the two columns here, okay. DSC user data, describe the table.
दैट द फर्स्ट कॉलम वी आर वर्कआउट. अब ये जो कॉलम मैंने क्रिएट किया है ये सिंपल कॉलम्स है. नाउ हैव यू डन विद दिस? दिस क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड Yes, और नॉट? एवरीवन गाइस, आदित्य, कला, युगंती, स्नेहा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा या फिर कुछ चीजें मिस आउट हुई होंगी, प्लीज फ्री टू आस्क. तर एक कॉलम आणि टेबल जे क्रिएट करायला सांगितलं ना तुम्ही, जस्ट ते मी मिस केलं. ओके, शुड आई रिपीट? साई, आदित्य, Yes. स्नेहा, Once again, sir, प्रफुल्ल, please. रागिनी, रीमा, यस सर. साक्षी, श्रीश, सुमित. गाइस, हैव यू डन विथ दिस एवरीवन? यस सर. यस. चलो मैं Yes, एक sir. और बता देता हूँ Yes, sir. कि हम लोगों को टेबल कैसे क्रिएट करना है. सो यू हैव टू राइट डाउन विथ क्रिएट टेबल. टेबल का नाम, टेबल का नाम इन ब्रैकेट जो कॉलम नेम आपको देना है. लेट्स आई वांट टू टेक विथ सेकंड कॉलम नेम सिटी, वारकेर 900. ओके, ये एक. और दूसरा कॉमा, लेट्स से सिटी हो गया. और दूसरा क्या है, लेट्स से पिन कोड. अगेन लिखता हूँ वारकेर 90, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन. सो अब चेक करूंगा. नाउ आई फायर द 2 queries, so I must got the 2 tables in my list. So I am just getting here 2 tables. एक यूजर डेटा नाम से जो ऑलरेडी हम लोगों ने वर्कआउट किया था, और सर दूसरा स्क्रीन मिला थोड़ा है बड़ा मुझे, करना. दूसरा मिला है मुझे यूजर डेटा 1 नाम से. क्लियर? Yes, sir. जो डिस्क्राइब करना है यूजर डेटा, तो हम लोगों को ये मिलेगा. और अगर मैं लिखूं यूजर डेटा 1, तो हम सॉरी DSC, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल? यूजर डेटा 1, USCER, तो हम लोग को ये मिलेगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's move to the next story. Let's move to the next one. See what the thing we have to work out, what the thing we have to execute to the next. अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टोरी की. जैसे मैंने एक तो टेबल क्रिएट कर लिया. नाउ व्हाट द नेक्स्ट टेबल आई वांट टू क्रिएट? क्रिएट टेबल विथ प्राइमरी की. अब हम लोग बात करेंगे कीज की. सो आई वांट टू क्रिएट द टेबल विथ प्राइमरी की. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी की? कैन यू Which can be Limited one होगा, sir. Limited होगा. One time. Limited. Only one time, sir. only one Cannot be time? repeated. Yes, sir. It means only one time. Yes, guys. Yes, sir. Yes, sir. So what is the meaning? क्या होता है, हम लोग अगर बोलेंगे कि मैं अगर प्राइमरी की अप्लाई करना चाहता हूँ, तो व्हाट इज द एंटिटी वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ दिस एंटिटी इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. हम लोग एंटिटी को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? लेट्स टॉक टू दिस वन. ये जो होता है, ये एंटिटी कैसे काम करेंगे, टेबल विथ प्राइमरी की जो वर्कआउट करना होता है, ये कैसे काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा? वी जस्ट हैव टू थिंक ऑन दिस. क्रिएट टेबल विथ प्राइमरी की. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये प्राइमरी की क्या होती है. सपोज मैं एक ऐसा टेबल बनाना चाहता हूँ जिसमें पहला कॉलम हो नेम नाम का, दूसरा कॉलम हो कॉन्टैक्ट नंबर का, और तीसरा कॉलम हो ईमेल का. ओके, लेट्स से फर्स्ट कॉलम इज ऑफ नेम, दूसरा कॉलम है सी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड तीसरा कॉलम है ईमेल. ओके, फर्स्ट वन इज ऑफ नेम, सी नंबर एंड ईमेल. फर्स्ट वन इज ऑफ नेम, सी नंबर एंड ईमेल. सो ये कॉलम अगर हम लोगों को वर्कआउट करना है, तो इससे हम लोग वर्कआउट करेंगे, इससे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. तो अगर हमें इसे वर्कआउट करना है और एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग इसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? वी जस्ट गो फॉर द नेम, वी जस्ट गो फॉर द कॉन्टैक्ट नंबर, एंड वी जस्ट गो फॉर द ईमेल. तो ये स्टोरी हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें मुझे क्या करना है? अगर मैं बोलूँ आपको कि ये टेबल क्रिएट करें, तो आप सिंपली क्रिएट टेबल, टेबल नेम, 3 कॉलम पास कर दोगे. बट व्हाट इज द कंडीशन आई वांट टू पुट? सपोज मैंने अगर यहाँ पे नंबर लिखा 305438, और यहाँ पे मैंने अगर ईमेल लिखा, ओके, सो व्हाट द ईमेल abcd@gmail.com. अगर मैं वापस से, अब सपोज ईमेल के बारे में मैं बात करता हूँ पहले, बाद में कॉन्टैक्ट नंबर की तरफ आता हूँ. अगर मैं वापस से सेम ईमेल आईडी एंटर करूँ abcd@gmail.com, तो मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि मेरे टेबल ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए. एग्जीक्यूट ही नहीं होएगा सर.
एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए, उसमें परफॉर्म ही नहीं, उसने एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब फेसबुक पे जाते हो, सिंगल आईडी इज यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन ना, ऐसा नो, Yes, sir. ओके ना। तो जब हम लोग पे जाते हैं इन वी आर गोइंग फॉर दिस ईमेल ऑन फेसबुक और जीमेल पे जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हम लोग वहाँ पे सिंगल ईमेल आईडी को ही वर्कआउट करते हैं ना, क्लियर? Yes, sir. ओके। तो ये जो चीज़ हम लोग को वर्कआउट करनी है वो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? वी जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट विद अ सिंपल एंटिटी दैट इज abcd@gmail.com by using what? Repetition, by using primary key. तो अगर आप इस ईमेल को प्राइमरी की लगा दोगे तो व्हाट द बेनिफिट वी आर गेटिंग? ये रिपीटेड वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर व्हाट आई वांट टू से? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. प्राइमरी की का मीनिंग क्या है? अगर हम लोग कोई भी कॉलम को अगर प्राइमरी की लगा देंगे तो प्राइमरी की लगाने के बाद ये जो कॉलम है ये ऑटोमेटिकली रिपीटेड वैल्यूज को नहीं लेगा, इट वॉन्ट टेक द एनी रिपीटेड वैल्यूज, सो दैट वी कॉल इट एज एन व्हाट? दैट वी कॉल इट एज एन प्राइमरी की। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। इज दैट क्लियर गाइस? ऐसा नो? Yes, sir. Okay, Yes, na? sir. So that the story we have to work out about what? That the story we just want to work out about this primary key. Clear? Cleared all of you? I Yes, don't know. Yes, sir. Primary क्या की क्या है ये पहले समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then I want to go for the next one. अब मैं बात करता हूँ इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। व्हाट इज द क्वेरी वी हैव टू राइट डाउन? क्रिएट टेबल नेम यूजर डेटा 1 इन ब्रैकेट नेम Column name. varchar 900 comma email varchar 90 just write down here primary key primary primary key semicolon. Clear what you have to do? Yes, sir. क्रिएट टेबल नेम इन ब्रैकेट पहले कॉलम का नाम, दूसरे कॉलम का नाम और प्राइमरी की एंड एंटर। सो व्हाट इट सेज, अब टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं इसे टेबल को चेंज कर देता हूँ यूजर डेटा 1 लेट्स से 2, सो आई एम जस्ट गेटिंग द प्राइमरी की। अब अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूँ डेटा 2 को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो व्हाट द थिंग, यहाँ पे ईमेल varchar 90 null no and it is a primary key. Is that clear guys? Yes, sir. Yes. Okay, so that the story we have to do, that the story we have to execute. Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Okay na? Yes, sir. That we Yes, call sir. it as what? That we call it as a primary key. Okay, so just write down this query. How we can deal with this primary query, primary key by using a simple concept that is a primary key. Am I clear? Yes, sir. Yes. So the size of the primary key should be less than 767. Yeah, right. It must be less than 767. ठीक है सर। So see, guys, what is the query we have to write down? Create table name. पहले कॉलम का नाम varchar 900, दूसरे कॉलम का नाम varchar 90, प्राइमरी की। Am I clear? Shrish, Sakshi done. Yuganti, Yes, sir. everyone done. Sai done. Yes, sir. Kalyani, Praful. अरे सर मेरा Yes, sir. What is the issue? सर एरर आ रहा Put the screenshot in a group. Let me check. है। डेटाबेस सिलेक्टेड Sorry. नो डेटाबेस सिलेक्टेड है सर। हाँ, no database selected ना. Just write down the line. Use database name. See, if you want to create a database, you have to first select the database ना. If you want to create a table कहाँ पे create करोगे? Database के अंदर, right? हेलो सर। ऐसा no, Yes, Yes, sir. right? So you need to select the database always. Getting my point? सर कमांड लाइन ओपन कर रहा था ऐसा आ रहा है सर। नहीं ना, कमांड लाइन मत ओपन करो पवन, पहले मुझे वो एग्जीक्यूट पूरा हुआ क्या वो बता।
हैव यू डन? कुछ लिख के आ रहा है, कुछ लिख के आ रहा है। द सिक्योरिटी सेटिंग स्क्रीन को शेयर करो फास्ट। Kalyani, have you got it? What we have to do? What is the query? मेरा फोटो पाठवू का? Just what is the error? See, कल्याणी तुला काय करायचं आहे, तू डेटाबेस सिलेक्ट नाही केलाय ना, ही लाईन लिही आणि मग क्रिएट टेबलची लाईन लिही. ज्या डेटाबेसमध्ये तुला क्रिएट करायचं आहे टेबल, त्या डेटाबेसला आधी सिलेक्ट करावं लागेल आपल्याला. व्हॉट इज द लाईन ऑफ कोड वी हॅव टू राईट डाऊन? यूज डेटाबेस नेम. गेटिंग माय पॉईंट? सर नेम आणि ईमेल पर्यंत क्रिएट झालाय डेटाबेस. नेम आणि ईमेल पर्यंत. मग ही क्वेरी एक्झिक्यूट नाही होत आहे का? हां. तू म्हणते ना मला एरर देतं की डेटाबेस इज नॉट सिलेक्टेड, राईट ना? सर मला देते एरर. सॉरी, एरर मला देत होता, आता करत आहे सर. अच्छा, स्नेहा इज देयर. ओके. पवन, डू वन थिंग, कंट्रोल पैनल में जाके जितने भी MySQL है सब अनइंस्टॉल करो. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट यू हैव टू डू? इट विल टेक अ टाइम टू इंस्टॉल ना. तुम्हारे इसमें टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन के लिए, क्योंकि वो मैंने दो वर्जन इंस्टॉल करके रखे हैं ना, सो दैट. सर एक बार बता देंगे ऐड टू रिमूव किया सर, अभी इधर क्या लिखना है? हर इसमें रिमूव करो, एवरीवेयर. कंट्रोल पैनल में जाओ, कंट्रोल पैनल में जाके रिमूव करना है, अनइंस्टॉल करना है. जस्ट सर्च द वीडियो ऑन यूट्यूब हाउ टू अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर फ्रॉम मशीन. वहाँ से रिमूव नहीं होता है, वैसे रिमूव नहीं करना है. कंट्रोल पैनल में जाओ, वहाँ से रिमूव करो. गेट इट? गॉट इट? यस. ओके. लव गाइस, लेट्स मूव अहेड. लेट्स टॉक टू दिस वन. अब हम लोगों ने जो टेबल क्रिएट किया वो प्राइमरी की वाला टेबल क्रिएट किया. नाउ साई, कमिंग टू योर पॉइंट कि इसको यूज कब करना है एंड व्हाट इज द बेनिफिट वी हैव टू डू. स्क्रीन इज विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल यस सर. प्रॉपर्ली? फुल स्क्रीन मोड? No, sir. No sir. No in full screen. पवन, स्टॉप योर शेयरिंग. ओके सर, ओके. क्लिक ऑन स्टॉप शेयरिंग. या नाउ विजिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. Sure. अब what is mean by primary key? Let me clear you. Now I am performing insert operation. Insert into, ignore कीजिए, बाद में query में आप लोगों को बताऊंगा. Insert into table name. Let's say user data 2. In bracket insert into table name user data 2. उसके बाद मैं name की value, let's say values, मुझे इसमें values insert करनी है, तो name की value मैं insert करता हूँ ibis. ओके. कॉमा ईमेल की वैल्यू में इंसर्ट करता हूँ abcd@ibis.com. ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन. लेट मी रिपीट वंस अगेन. देखिए, पहली बार मैंने जब डेटा यहाँ पे वर्कआउट किया, इंसर्ट किया, तो इट इज इंसर्टेड. बट सेकंड टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू बी इंसर्ट द सेम रिकॉर्ड जिसमें मैंने ईमेल आईडी दोनों का सेम रखा है, तो व्हाट इट विल कॉज? इट विल कॉज एक्सेप्शन. डुप्लीकेट एंट्री abcd@ibis.com फॉर की प्राइमरी. Am I clear, guys? Yes, sir. Yes or Yes, no? sir. Clear ना? तो यहाँ पे जो हम लोगों ने चीजें वर्कआउट की अबाउट द इंसर्शन इनटू द रिकॉर्ड, तो ये जो इंसर्शन हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, किस तरीके से आउटपुट मिलेगा? यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा दैट वी जस्ट गेटिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस आउटपुट बाय यूजिंग सिंपल थिंग. Am I clear, guys? Yes, sir. Clear all of you? हाँ, sir. समझ में आया ना कि प्राइमरी की का मीनिंग क्या होता है? Yes, sir. ओके, ये होता है प्राइमरी की का मीनिंग, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वी जस्ट गेटिंग टू बी वर्कआउट विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल थिंग, दैट इज अप्लाइंग द प्राइमरी की. ओके, अप्लाइंग द प्राइमरी की लाइक दिस. क्लियर नाउ? हैव यू क्लियर एवरीवन? प्राइमरी की का कांसेप्ट क्लियर? यस सर. Yes, sir. नाउ व्हाट आई वांट टू से. अब देखिए मुझे क्या बोलना है कि मुझे ऐसा टेबल चाहिए. आई वांट अ टेबल इन विच बोथ ईमेल एज वेल एज कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल
as well as contact number not accept the duplicate values. ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ने डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो ट्राई टू वर्कआउट, कीजिए वर्कआउट, यूर टर्न. कि इन्होंने डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. आई वॉन्ट टू डू दैट. तो हम लोग इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसे वर्कआउट कैसे करेंगे, दैट यू हैव टू चेक इट आउट. डू इट नाउ. इट वॉन्ट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट वैल्यूज फॉर कॉन्टैक्ट नंबर एज. क्या करना पड़ेगा? कैन एनीवन टेल मी? गाइस क्या करना पड़ेगा? यस हर्षदा. Sir, repeat the question. See what I want to say. Here we are applied the primary key to this email column. Okay. Yes, sir. तो email column को हम लोगों ने अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ? It won't accept the repeated values into the email, right? Yes, sir. What I want to say, I want to do the same thing for contact number. मुझे contact number के लिए भी सेम चीज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? I think we should write the primary key to the contact number also. Will it work? और नो सर, प्राइमरी की एक ही डिक्लेयर कर सकते हैं ना. प्राइमरी की एक ही डिक्लेयर कर सकते हैं. एक ही declare कर सकते हैं. Yes, sir. ऐसा नो. सर पूर्ण कॉलमला Unique कंप्लीट कॉलमला देऊन द्या. Complete column. So see, if I will write down the query like this, create table user data, name, let's say primary key. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, okay, तो what is an problem we are getting? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर मैं, हाँ मेरे पास नेम नाम का कॉलम है, सॉरी नेम नाम के कॉलम से अभी इसे मैं चेंज करता हूँ सी नंबर में, लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर. तो अगर मैं दो जगह प्राइमरी की दूँ तो इट गिव मी द एरर मल्टीपल प्राइमरी कीज आर डिफाइंड. मल्टीपल प्राइमरी कीज आर डिफाइंड. इसका मीनिंग क्या होता है? मल्टीपल प्राइमरी कीज आर डिफाइंड मीन्स व्हाट? अगर आप लोग एक More टेबल than में one. इन अ सिंगल टेबल इफ यू यूज टू प्राइमरी की then it will not allowed. Guys, getting my point? What I have to say? Yes, sir. एक टेबल में आप एक ही प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो. यू कांट डिक्लेयर मोर देन वन प्राइमरी की इन अ सिंगल टेबल. सो व्हाट टू डू नाउ? अब ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? Yes, guys. Sir, I think we should remove the comma. We should And remove the column comma. name. No. मुझे दो कॉलम को अगर सेम नेचर देना है कि वो रिपीटेड वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे तो उसमें क्या होगा? पहली चीज़, रिपीटेड कॉलम को एक्सेप्ट ना करे तो हम लोग पहले प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे. ये पहली बात. दूसरी बात, एक इसमें मैं एक ही प्राइमरी की लिख सकता हूँ. तीसरी बात, अब मुझे अगर दूसरे कॉलम को यूनिक करना है, उसने रिपीटेड वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो सेकंड कॉलम है उसमें यूनिक की लिखनी पड़ेगी. वी जस्ट हैव टू मेंशन योर यूनिक की. क्यों? क्योंकि मैं दो कॉलम्स को वर्कआउट नहीं कर सकता इन अ सेम वन. मैं दो कॉलम्स को प्राइमरी की नहीं दे सकता इन अ सेम दिस. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? यस. Sir. यूनिक मल्टीपल यूज होता है कैसे? सॉरी स्नेहा, कम अगेन. मतलब यूनिक की हम एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं यस, क्या? यू कैन यूज एनी नंबर्स ऑफ यूनिक की. आप एक से ज़्यादा जितने चाहे उतने यूनिक की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइमरी की एक ही यूज़ करेंगे.
गेटिंग माई पॉइंट गाइस? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके ना? आप आपके टेबल में एक ही प्राइमरी की यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मोर देन वन प्राइमरी की यूज़ करना है तो आप प्राइमरी की यूज़ नहीं करोगे, आप यूनिक की यूज़ करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके ना? Likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. Just try to work out with this now. Try to execute. कीजिए, टेबल प्राइमरी की के साथ क्रिएट कीजिए एंड टेबल यूनिक की के साथ भी क्रिएट कीजिए। वर्क आउट विद टू टेबल्स विद प्राइमरी की एंड टेबल्स विद यूनिक की। कुछ भी नहीं है, अगर यूनिक की वर्कआउट करना है ना तो वेरी इजी वे इज देयर। यूजर डेटा यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा UNIQUE यूनिक की। ओके, यूजर डेटा टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, मुझे टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर डेटा 3, सो इट विल क्रिएट। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। गाइस, अमन, अंकित, हैव यू क्लियर? अथर्वा Yes, sir. क्लियर ना? हर्षदा Yes, sir. ओके, कला क्लियर? Yes, sir. कल्याणी, पवन Yes, sir. ओके ना? सो व्हाट द थिंग, एवरीवन क्लियर? रीमा, ऋषिकेश, सुमित, Yes, स्नेहल। तो चीज़ क्या है, हम लोग को जो जब प्राइमरी की वर्कआउट करनी होती है तो इन अ प्राइमरी की व्हाट द स्टोरी वी हैव टू कीप इनटू आवर माइंड कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मुझे अगर बाकी की कीज को वर्कआउट करना है तो सर एक क्वेश्चन है। हाँ, यस यस प्लीज। सर जैसे प्राइमरी की में जो डिफरेंट जीमेल आईडी नंबर डालेंगे तो एग्जीक्यूट होएगा ना? प्राइमरी की में नहीं, अगर नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर की डिफरेंट नंबर से एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सेम नंबर से नहीं हो। सेम नंबर पे एक ही बार आईडी आएगा। ओके ओके सर, क्लियर ना? और अगर उसे हम लोग यूनिक की लिखते हैं तो यूनिक की आल्सो वर्क लाइक दैट। यस यस क्लियर? यस। ट्राई टू वर्कआउट। Done, sir. डन एवरीवन? चलो, डन एवरीवन? ओके, Yes, sir. दैट अबाउट व्हाट वी आर जस्ट टॉक अबाउट प्राइमरी की। ये जो हम लोगों ने बात की है, वी आर जस्ट टॉक अबाउट व्हाट, वी आर जस्ट टॉक अबाउट अ प्राइमरी की। हम लोगों ने जो बात की है वो हम लोगों ने प्राइमरी की के बारे में बात की, और दूसरी जो की है वो यूनिक की के साथ। अब टेबल कौन से टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो टेबल है वो सिंपल टेबल विथ नॉर्मल कॉलम्स यू हैव टू वर्कआउट। दूसरा जो टेबल होता है वो टेबल विथ प्राइमरी की। ओके, पहला टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया टेबल दैट इज अ सिंपल टेबल। दूसरा जो टेबल होता है वो टेबल विथ प्राइमरी की। ओके, तीसरा जो टेबल हम लोग वर्कआउट करेंगे दैट टेबल विथ ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहा है? आई सेड ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम। आई सेड ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम, AUTOINCREMENTED column, auto incremented column. So what is the meaning of auto incremented column? Auto incremented column का meaning क्या होता है? A column whose value will be increment automatically. Getting my point, guys? यस सर। A column whose value can be increment automatically called as auto incremented column. तो ये टेबल हम लोगों को वर्कआउट करना है। हाउ दैट टेबल विल वर्क उसे हम लोग कल वर्कआउट करेंगे। बट थिंग इज दैट कि देखिए मेरे अगर पास टेबल है कोई भी, एंड इफ
आई वॉन्ट हियर वन मोर कॉलम, यहाँ पे मुझे और एक कॉलम चाहिए। ओके, तो ये काम कैसे करेगा ऑटो इंक्रीमेंटेड वाला? तो यहाँ पे अगर आपने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया पहले तो यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली आएगा, दूसरे रिकॉर्ड को इंसर्ट किया 2 ऑटोमेटिकली आएगा, तीसरे रिकॉर्ड को इंसर्ट किया 3 ऑटोमेटिकली आएगा, एंड सो ऑन। क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay now? Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. That's the way we have to deal. That's the way we have to work. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम बोलेंगे। Here is the way to be executed. Okay? Just note it down fast now. Note down कीजिए, execute कीजिए। What is the meaning of this primary key? What is the meaning of union key? And auto incremented column यानी क्या? A column whose value can be incremented automatically by inserting the record called as auto incremented column. Have you done? So we are just going to stop for today here. We'll meet back again on tomorrow.